इन अपने बच्चों को बचा लो इस हिंदू धर्म के ठेकेदारों से। ऐसा घिनौना चेहरा इनका सामने आया है न्यू जर्सी के अंदर, ऐसा घिनौना रूप सामने आया है। ये आपके बच्चों को जो बंधक बना के गलत काम करवाते हैं ना, वो सामने आ गया न्यू जर्सी के अंदर। जैसे ही छापा मारा, उस छापे के अंदर बड़े हैरान करने वाले खुलासे हुए, बड़े हैरान करने वाले। ये तुम्हारे को यहाँ पे लिंडू लिंडू करके और लेकर जाते ना विदेश में, विदेश में तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे ऐसा व्यवहार करते, ऐसा तो व्यवहार है ना, मतलब जानवरों के साथ भी ना करे कोई, जानवरों के साथ भी न्यू जर्सी में। लेकिन जैसे वहां पे वकील भी बोली, मैं हैरान हूं कि ऐसे हो रहा है, ये सब मंदिरों के अंदर हो रहा है, मंदिरों के अंदर हो रहा है ये सब। टूब कर मरने वाली बात, बड़े लिंडू धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम्हारी तो धज्जियां हर साइड से उड़ती आ रही है, हर साइड से। न्यू जर्सी के अंदर जो तुम्हारा कारनामा है, पहले एक बार सुनो, उसके बाद बताते हैं सच्चाई पूरी क्या है। अपने बच्चों को बचा लो इनसे, बचा लो अपने बच्चों को इनसे। ये खड़े हो जाते हैं गुरुद्वारों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, गुरुद्वारा साहिब के बाहर प्रदर्शन करेंगे, ये देखो जी यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तुम मंदिरों में घिनौना काम करते हो, तुम कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, पहले तो ये बताओ। सेम ऑन यू, बेशरम इंसान, दोगले इंसान। सुनना थोड़ा। Where about 200 workers at a large Hindu temple say they were forced into manual labor. A new lawsuit says the workers were made to make a little more than $1 an hour. CBS 2's Nick Calloway reports from Mercer County. FBI agents raided this sprawling site of a Hindu temple Tuesday morning in Robbinsville, just east of Trenton. The federal raid comes as a lawsuit claims workers were lured here from India and forced to work long hours on construction projects for just $1.20 an hour. I represent low-wage workers all the time, and this case is still quite shocking to me. Patricia Kakalik is a Brooklyn-based attorney for the workers. Her lawsuit accuses the leaders of the Hindu organization known as BAPS of human trafficking and wage law violations. The men lived in a guarded compound on the property, and the lawsuit alleges they were told they could not leave. They were told that if they left, they would sort of they could be subject to being picked up by the police. And, there were guards. There were more than 50 cameras throughout the premises. In a statement, BAP's leadership said they were made aware of the accusations Tuesday morning and are, quote, taking them very seriously and thoroughly reviewing the issues raised. The workers were allowed into the country on a religious visa, and sources with the temple said the workers were here to volunteer, not to make money, a claim disputed by attorneys for the workers. They took the job to earn a salary to support their family. Security kept our cameras far away just hours after the FBI raided the property. People at a neighboring Sikh church were alarmed by the accusations happening right next door. Of course it is. It is wrong. An attorney for the workers said this could be the largest forced labor case in this country in decades. The lawsuit seeks unpaid wages and an unspecified amount of money in damages. In Robbinsville, New Jersey, Nick Calloway. पता है क्या हुआ था ये? आपको पूरी कहानी बताते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ये सो कॉल्ड लिंडू है जो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, ये लिंडुओं के ठेकेदार है ना, ये तुम्हारे साथ क्या, बच्चों को यहाँ से नकली वीजा बना के वहां पे लेके मंदिरों के अंदर 70-70 घंटे काम करवाया और 1 घंटे का $1 दे रहे हैं। 1 घंटा काम करवाने का $1, कमाल की बात नहीं है। और फिर इनका अलग से शोषण किया गया, वो अलग से। FBI भी छापा मार कर हैरान रहेगी कि मंदिरों के अंदर ऐसा घिनौना काम कर रही है। मंदिरों के अंदर कोई क्या है, वो तुम्हारी संस्था है ना, कोई मंदिरों की संस्था BAPS है बाप्स नाम से, जो उसके बारे में बताएगा, वो संस्था है ना, ऐसे घिनौने काम कर रही है आपके बच्चों के साथ। और यहाँ पे तो ये लोग दिखाई देते हैं जो कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये लोग दिखाई देते हैं। अभी चक्कर क्या था, धार्मिक वीजा मंदिर में 200 श्रमिकों की मानव तस्करी का आरोप लगा है ये इनके ऊपर। मानव तस्करी का मतलब समझते हो आप? वीजा लेटर के लिए 200 कर्मचारियों से कितने $, कमाए, तुम्हारे से पैसा भी कमाया और तुम्हारे को वहां पर तस्करी भी कर दी। शर्म नाम की कोई चीज है क्या? सुनो उस वकील ने जो बोला था ना, वो थोड़ा सुनना, आपको शर्म को भी शर्म आ जाएगी। संघ ये छापेमारी ऐसे समय में हुई जब एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें दावा किया गया है कि श्रमिकों को भारत से बाहर बेला फुसलाकर यहां ले आया गया और उन्हें मात्र $1.20 प्रति घंटे के हिसाब से निर्माण परियोजना पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया। सिर्फ काम नहीं करवाया, मजबूर किया गया। और जो वकील है, जो पेट्रिशिया के काका लोग ने, उसने वकील पेट्रिशिया ने पता क्या बोला, बोले मैं हमेशा कम वेतन वाले श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हूं, यह मामला मेरे लिए अभी भी काफी चौंकाने वाला है। श्रमिकों के लिए ब्रुकलिन स्थित वकील पेट्रिशिया काकाटुआ ने कहा, उनके मुकदमे में BAPS बाप्स नामक हिंदू संगठन के नेताओं पर मानव तस्करी और वेतन उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वेतन उल्लंघन, मानव तस्करी का। न्यू जर्सी के हिंदू मंदिर पर जबरन श्रम के मुकदमे में चौंकाने वाले उल्लंघन का आरोप।
बर्किंघम के विशाल मंदिर में पुरुषों को सप्ताह में लगभग 90 घंटे काम करने के लिए कहा गया और उनको वेतन के नाम पे दिखा दिया ठेंगा। ठेंगा वेतन के नाम पे दिन रात काम करवाते तुम्हारे से मजदूरों की तरह, और दे क्या रहे हैं? अभी भी नहीं समझे इनके इरादे क्या है। अभी भी अगर आप इनके इरादे नहीं पकड़ पाए हो तो आप इनके इरादों को कभी पकड़ नहीं पाओगे। बताओ ना एक बार, पापा अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन, इससे अच्छे और क्या? इनको पता तुम्हारी औकात ही इतनी है। अंत भगत है ये चलेंगे ऐसे ही, तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं कदम कदम पे। सिर्फ यहां तो दिखा ही रहे हैं, विदेशों में ले जाकर भी तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। ये खुश हो जाते, देखो पापा हमें विदेश लेके जाएंगे, वहां पे तुम्हारे को मजदूर बनाएंगे, वहां पर तुम ना गधों की तरह काम करना और तुम्हारे को वेतन ना मतलब जानवरों से भी कम दिया जाएगा। तुम्हारे से अच्छे पैसे तो वहां पर जानवर लेते होंगे, जानवर लेते होंगे तुम्हारे से अच्छे पैसे। कमाल की बात है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही अंधभक्तों। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है तुम्हारे लिए, कहीं सोचो कोई अफसोस ना ना ना, तुम हो ही इसी लायक, तुम इसी लायक हो। तुम्हारे बाप को पता तुम्हारी औकात, वो $1 भी ज्यादा दे रहा है तुम्हारे को। वो $0.20 देने थे उसको, वो $1 भी ज्यादा दे रहा है। $0.20 पे भी तुम खुश रहते हो वहां पे। तुम्हारे को पता है तुम्हारे को खाना क्या है, तुम्हारा खाना तो फ्री मिल जाता। लेकिन विदेशों के अंदर तो इतने ज्यादा जानवर नहीं होते, तुम कहाँ ढूंढोगे? गोबर कहाँ ढूंढोगे? मूत्र कहाँ ढूंढोगे? वैसे वहां यूपी में तो खुल गई, ठीक है ना, काऊ यूरिन डेयरी खरीदो और दबा के मूत बिक रहा है, दबा के मूत बिक रहा, मूत्र दबा के बिक रहा, देख लो यूपी के अंदर। मतलब तैयार हो रही है भाई, पूरी बड़ी फौज तैयार हो रही है इनकी। पी मूत देख रहा है शाम के टाइम पर, क्या अनाप शनाप पोस्टर डाल देते हैं। फिर ये किसी के हाथ नहीं आते। मतलब उल जलूल करना, उल जुलूल पकड़ा, ये इनकी औकात है। ये खुद ही उल जलूल टाइप पे पैदा हुए हैं, तो इनकी हरकतें भी वैसी होंगी। आप क्या सोचते हो इनकी हरकतें कुछ अच्छी होगी? इसलिए बोलता हूं मैं, राज करेगा खालसा। खालसा राज के बिना कहीं पर कोई गुजारा आपका संभव है ही नहीं। खालसा राज के बिना आपका काम चलेगा भी नहीं। हम ज्यादा नहीं मांगते, हम मुझे नहीं कहते हमारे को पूरा देश दे दो, ये दे दो, नहीं नहीं नहीं। इनको थोड़ा साइड में रखो, अपने चिंटू मिंटू कैंडी गोबर मूत्र खाने पीने वालों को इनको साइड रखो, और अपना जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का जो हिस्सा है, या उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ये हिस्सा दे दो, ताकि कम से कम ये तो खालसा बचा रहे, ये तो खालसा बचा रहे। चलो हिमाचल भी तुम ही रख लो, वहां पर भी ऐसे ही बहुत दुनिया भर के अंधभगत है, वहां पर भी उनको तुम रखो, मुबारक हो तुम्हारे को हिमाचल। जब वहां पर चंगना टंगना पंगना को जिता सकते हैं, तो हिमाचल वालों की तो बिल्कुल पता चल लिया अकल कहाँ पे गई हुई है। अकल नाम की चीज नहीं, वो भी अपना दबा के गोबर का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसों को जिताओगे तो वही इस्तेमाल करोगे, उनको भी अपने पास रखो। सिर्फ हरियाणा और पंजाब भी एक हो जाए ना, तो इनका ना समझ में ना आए, समझ में नहीं आए इनके। आप लोग बिल्कुल कमेंट में मेरी राय रख सकते हो। एक बार हरियाणा पंजाब एक होके दिखा दो, एक झंडे के नीचे, एक निशान साहब के नीचे, कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ निशान साहब के नीचे इकट्ठे हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं, इनको तो ना संभल नहीं पाएंगे ये तुम्हारे बच्चों की ऐसे मानव तस्करी कर रहे हैं, तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। माँ बाप सोचते हैं बेटा पता नहीं विदेश में गया, काम करने गया होगा, वहां पर बेटे की आंख लाल पीली हरी बना दी इन्होंने, आंख लाल पीली लिंडुआ के नाम। इनके साथ होना चाहिए ऐसा। वैसे इनके साथ ठीक हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा। क्योंकि फिर जब खाने का नंबर आता है ना, जब ये मांगते खाना मांगते हैं, तब इनको बोलते तू गुरुद्वारा साहिब जाओ, उधर लंगर छक के आओ, उधर लंगर छक के और फिर आने के बाद पोस्ट डाल दो गुरुद्वारों में गलत काम हो रहा है ना। तुम ऐसा कर रहे हो, विदेशों के अंदर कर रहे हो तुम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।